ہوتی ہے، لیکن ہمارے پاس آپ کے لیے دعا ہے، لیکن ہمارے پاس آپ کے لیے دعا ہے۔ محترمہ عائشہ فاطمہ عامر صاحبہ، اللہ آپ کو نام میں، کام میں، گھر میں، عزت میں کامیابی عطا فرمائے، صحت میں، زندگی میں، مال میں ہمیشہ خیر و برکت عطا فرمائے اور آپ کو ہمیشہ تندرستی اور سلامت رکھے۔ اکثر باغ سجا دیتا ہے، اسی طرح اس محفل کو محترمہ عائشہ فاطمہ عامر صاحبہ نے چمکا دیا۔ جزاک اللہ خیر۔ میرا پہلا سوال، تین میں سے مرزا قادیانی نے اسلام کے کس ستون کو حرام قرار دیا تھا؟ مرزا قادیانی نے اسلام کے کس ستون کو حرام قرار دیا تھا؟ گروپ بی کے لیے، ٹیم بی کے لیے میرا سوال ہے، تحریک ختم نبوت میں شمولیت کے جرم میں پھانسی کی سزا سن کر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا تھا؟ تحریک ختم نبوت میں شمولیت کے جرم میں پھانسی کی سزا سن کر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا تھا؟ زندگی اور موت کا فیصلہ زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر ہوتا ہے، اسی لیے میں کسی حکومت سے رحم کی اپیل نہیں کروں گا۔ بالکل صحیح جواب ہے۔ مرزا قادیانی کے نام نہاد خلفاء کے نام بتلائیے۔ نہاد خلفاء کے نام بتلائیے۔ حکیم نور الدین بریلوی، مرزا بشیر الدین محمود، مرزا مسرور احمد، مرزا طاہر احمد۔ بالکل صحیح جواب۔ 5 سپتمبر 1894 کو کیا ہوا؟ جی نہیں، عبداللہ حاکم کا بھارتی واقعہ نہیں ہوا اور وہ اس تاریخ سے باقی گزرا رہا۔ بالکل صحیح جواب۔ مسیح کی قادیانی کی کیا تشریح کرتے ہیں؟ قادیانی کہتے ہیں عیسیٰ کے جیسا کوئی آئے گا، عیسیٰ بھی مریم نہیں آئیں گے۔ بالکل صحیح جواب۔ قادیانوں کی مشہور کتاب تذکرہ سے کیا مراد ہے؟ قادیانی کی شیطانی میں یہ الہام، کشف اور خوابوں کے مجموعے کو تذکرہ کہتے ہیں۔ قادیانیوں کے نزدیک تذکرہ قرآن پاک کی طرح وحی مقدس ہے۔ بالکل صحیح جواب۔ شکیل بن حنیف کے نزدیک اللہ تعالیٰ امت میں نبی کے علاوہ کسی اور کو بھی رہنمائی کے لیے بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت میں نبی کے علاوہ کسی اور کو بھی رہنمائی کے لیے بھیجتے ہیں۔ شکیل بن حنیف کے نزدیک اللہ تعالیٰ نبی کے علاوہ امت کے بڑے رہبر کو بھیجتے ہیں۔ ایسا عقیدہ رکھنا اسلام کے اعتبار سے بالکل غلط ہے۔ بالکل صحیح جواب۔ مرزا نے کن 2 چیزوں کا دعویٰ کیا تھا؟ مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، مسیح اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ مرزا قادیانی نے کہا، میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی، یعنی بھیجا گیا بھی۔ اور آدھا صحیح بولو، اس کے بعد روپا صحیح جواب۔ مسیح اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ براہین احمدیہ میں مرکزی موضوع کیا تھا؟ اسلام کا سلسلہ نہ منقطع ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ براہین احمدیہ میں مرزا نے کیا لکھا؟ اپنی شخصیت کا اشتہارہ دیا اور جگہ کا مذہب ہونے کا اقرار کیا۔ بالکل صحیح جواب۔ مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ایک ہی شخصیت کے 2 نام ہیں؟ پیر جھوٹے دجال نکلیں گے، اس حدیث کا مطلب شکیل کیا بیان کرتا ہے؟ اقوام متحدہ
काफिला के नुमाइंदे और 30 मुल्क जो इराक पर हमला करने के लिए कहते हैं, ये सब इसके नजदीक दज्जाल है। बिल्कुल सही जवाब। नबी होंगे क्या हजरत मेहदी नबी होंगे? लोग दावा नबूवत का दावा करेंगे बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन पर अमल करेंगे और करवाएंगे। बिल्कुल सही जवाब। इताअत न करने वाले मुजाहिदीन आजादी को मिर्जा कादियानी ने किस नाम से पुकारा? इताअत न करने वाले मुजाहिदीन आजादी को मिर्जा कादियानी ने किस नाम से पुकारा? हरामी और बदकार। बिल्कुल सही जवाब। मिर्जा कादियानी किस इम्तिहान में नाकाम हुआ? बिल्कुल सही जवाब। इम्तिहान में फेल हो गया। मिर्जा कादियानी का खानदान किसका वफादार था? वो जो गवर्नमेंट से खैर हुआ है, गवर्नमेंट अंग्रेज का खैर हुआ है। बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही। हिंदुस्तान की किस इल्मी और रूहानी शख्सियत ने अपने 4 लाख मुरीदों से ये कहा, जो शख्स कादियानत के खिलाफ काम नहीं करता वो मेरा मुरीद नहीं? के लिए मेरा सवाल, क्या कादियानों को अहमदी कहना जायज है? जायज नहीं। सही पक्का। चलो राइट। लेफ्ट को दे दो, पॉइंट लगाना। नहीं, अब क़यामत तक आसमान से कोई किताब नाज़िल नहीं होगी। बिल्कुल सही जवाब। के लिए सवाल, कादियानों के नजदीक मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी क्या है? अल्लाह का नबी और रसूल है। बिल्कुल सही जवाब। कादियानी मिर्जा कादियानी की बेटी को क्या कहते हैं? सैयदुन निसा। बिल्कुल सही जवाब। के करीब जमाने में हजरत मेहदी का जाहिर होना फर्क है। कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें मेहदी की बशारत देता हूँ। बिल्कुल सही। सवाल किससे किया गया था? गैर अहमदी के बच्चे का जनाजा क्यों न पढ़ा जाए? वो तो मां। बिल्कुल सही जवाब। महमूद ने किन अल्फाज में मिर्जा कादियानी को आदम साबित किया है? मिर्जा कादियानी को आदम साबित किया है। अच्छा कह रहे, सुकून से सोच के जवाब दीजिए। बेहतरीन कह रहे आप लोग। पहले आदम निकाह के बाद जन्नत से निकाला गया और लेकिन इस जमाने के आदम मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद निकाह जन्नत का मौजी बनाया गया। गार्डियन सही है? सही पक्का दे देंगे 5 लगाना। दे दो टीम में 5 लगाना। ईसाई पादरी अब्दुल्ला आदम की मौत के लिए मिर्जा कादियानी ने किससे झाड़ फूंक करवाया था? ईसाई पादरी अब्दुल्ला आदम की मौत के लिए मिर्जा कादियानी ने किससे झाड़ फूंक करवाया था? अब्दुल्ला नसाई से और मियां हामिद अली से। बिल्कुल सही जवाब। मिर्जा कादियानी सदरी कोट के बटन कैसे लगाता था? कासे में लगाता था और नीचे वाला बटन ऊपर के कासे में लगाता था। सही है जवाब। टीम में से पहला सवाल है, इमाम मेहदी मदीना में पैदा होंगे, मिर्जा कादियानी कहाँ पैदा हुआ? होंगे मिर्जा कादियानी कहाँ पैदा हुआ? मिर्जा कादियानी कादियान में पैदा हुआ और कादियान हिंदुस्तान में। बिल्कुल सही जवाब। दमशक शहर किस मुल्क में है? शहर किस मुल्क में है? सीरिया, शाम में। बिल्कुल सही जवाब। क्या दज्जाल की औलाद भी होगी? दज्जाल का लक़ब क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है। किसी जजीरे में पैदा। बिल्कुल सही जवाब। चीन में पैदा हुआ था। में पैदा हुआ था। कहाँ पे? कादियान। मिर्जा कादियानी किस घराने में पैदा हुआ था? गलत जवाब। ऑडियंस मुसलमान घराने में पैदा हुआ था। फिर भी गलत आया। टीम एफ के लिए कोई नशा नहीं। टीम जी के लिए आखिरी सवाल, इस राउंड का आखिरी सवाल, 5वां सवाल। कादियानी मिर्जा कादियानी के साथियों को क्या कहते हैं?
बिल्कुल सही जवाब। टीम सी के लिए 25, 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 टीम ए के लिए 20, टीम सी के लिए 25। वैसे और मुफ्ती साहब के मशवरे से मुतफ़िक़ा तौर पर ये तय पाया गया कि ये 5 जो टीमें हैं जो पूरे मुकम्मल अंजाम देते हुए फाइनल में रही है, 5 को भी फर्स्ट प्राइज से नवाज दिया जाएगा। जोरदार तालियों के साथ अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सानिया मिर्जा है। मैं जमात दहूम की तालिबे इल्म हूँ। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट हाई स्कूल साडापुर फार्म है और ये है मनवीन बेगम और ये है सुमैया बेगम। हमारा नाम मदीहा फातिमा है। हम इकरा स्कूल 9th क्लास में पढ़ते हैं और ये अफीफा सुल्ताना है और ये जमीला बेगम। ये भी बताइए बेटा। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम आदिया जुहा है। मैं जमात दहूम की तालिबे इल्म हूँ। मैं क्रिकेट हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम आयशा फातिमा है। मैं हजरत जमात की तालिबा इल्म हूँ और मैं क्रिकेट हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज अलीना महक। आई एम फ्रॉम 9th क्लास फ्रॉम क्रिकेट हाई स्कूल। सला नाज़रीन है और हम मदीना जुलूम हाई स्कूल से हैं और हम जमात हश्तुम में पढ़ते हैं। अस्सलामुअलैकुम, हमारा नाम सुबिया जहरीन है और हम हश्तुम क्लास की तलबा में और हम मदीना जुलूम से पढ़ते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हसन बेगम है और मदीना जुलूम की तालिबा इल्म हूँ और मैं हश्तुम जमात में पढ़ती हूँ। के नजदीक कादियान में दिसंबर के महीने में होने वाले जलसे में शिरकत का सवाब क्या है? बिल्कुल सही जवाब। 90 से ज्यादा सवाब है। टीम एफ के लिए 5 निशान। टीम जी हुजूर से मुतालिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पेश कीजिए। हजरत ईसा अलैहि सलाम के नुज़ूल से मुतालिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पेश कीजिए। मरियम जमीन पर नाजिल होंगे, 40 साल हुकूमत करेंगे, फिर शादी करेंगे और इनकी औलाद होगी, फिर मेरे साथ मेरे खबर के मुदस्सिर दफन होंगे। बिल्कुल। फिर से चौथे दौर के लिए टीम ए पर आ जाते हैं। टीम ए के लिए मेरा सवाल है, बेटा गौर से सुनिए। बराहीन अहमदिया का अंजाम क्या होगा? बराहीन अहमदिया का अंजाम क्या होगा? में क्या होता है? क्या होता है? में क्या होता है? मिर्जा कादियानी के अलहामात में ख्वाबों का मजमुआ और शैतानी आयतें और मिर्जा कादियानी की मजमून नकलें और चंद हदीसें और मिर्जा कादियानी के अरबी जुमले चंद होते थे। पुराने मस्जिद की चंद गैर से मुख्तलिफ आयतों के गैर मजमून टुकड़े और बीच में हदीसें और दरमियान में मिर्जा कादियानी की अरबी अपने को अगर अच्छा आता तो तुम क्या बोलिए? वो आता नहीं था, उन्होंने का बोलने का बिल्कुल सही जवाब। सही जवाब। टीम सी के लिए 5 निशान। टीम डी के लिए अगला सवाल। इस बुजुर्ग हस्ती ने जेल में ये कहकर 4 पर सोने से इनकार कर दिया, मैं 4 पर कैसे हो सकता हूँ जबकि खत्मे नबूवत के मुहाफिज रज़ाकार जमीन पर सोए। टीम सी के लिए अगला सवाल। निशानात पर देखो, सवाल का जवाब दो जल्दी। हो सकता हूँ जबकि खत्मे नबूवत के मुहाफिज रज़ाकार जमीन पर सोए। टीम डी मनाजिरों का अंजाम क्या हुआ? मनाजिरों का अंजाम क्या हुआ? टीम डी के लिए सवाल है, पूरा जवाब होना पूरा। अब्दुल हाकिम को
का पूरी दुनिया के इंसानों के लिए नबी होने का सबूत कुरान मजीद से दीजिए। नबी अब्बासी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे पास कोई नबी नहीं। मुर्तजा अंग्रेज की नजर में कैसा था? मुर्तजा अंग्रेज की नजर में कैसा था? अंग्रेज का वफादार और खैरख्वाह था, जिसको तलबा कवर नबी में कुर्सी भी मिली। बिल्कुल सही जवाब। कादियानी ने इसको ना मानने वालों को क्या कहा? इंजिल जानी कहा। ये जवाब पूरा जवाब होना चाहिए। कज़ाबिया मुसलिमा का नाम है। कज़ा मुस्लिमा का नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका दावा करने पर दिया। दावे का कोई सबूत दीजिए। मिर्जा के मुस्तकिल साहिब शरीयत होने का दावे का कोई सबूत दीजिए। टीम एफ के लिए सवाल है। मिर्जा कादियानी ने यूं कहा, ये तो समझो शरीयत क्या चीज है जिसने अपने लिए उम्मत के जिसने अपने लिए उम्मत में कमी कर दी और अपनी उम्मत पर कानून करार दिए कि साहबुल शरिया कैसे हो गया। मेरी उम्मत में मेरे पास उम्र है और नहीं भी। क्या जो यकीन ईसा को वही करे और मूसा को तौरात और रसूलुल्लाह को कुरान मजीद पर एक सबसे कम नहीं हूँ। बिल्कुल। मिर्जा कादियानी ने मुसलमानों से अलहदगी का ऐलान किन लफ्जों में किया? मुसलमानों से अलहदगी का ऐलान किन लफ्जों में किया? की फजीलत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुसब्बु अहदन मिन अस्हाबी फइन्ना अहदकुम लौ अनफक़ लिसलामा उती ज़हबन मा तक़मा अहदी वला निस्फही। फरमाया है कि तुम मेरे सहाबा को गाली मत दो। अगर तुम में से कोई और पहाड़ के बराबर सोना सदका करता है तो इसके अजर व सवाब के पूरे हिस्से को नहीं पा सकता और ना ही इसके अजर व सवाब के आधे हिस्से को पा सकता है। और 1908 ईस्वी तक मिर्जा किस दावे पर अटल रहा? बरोज़ी तौर पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरोज़ में तमाम कलिमात मोहम्मदी नबूवत के आईना दलील मुनाफिज। फिर वो कौन सा अलग इंसान था जिसने अलहदा तौर पर नबूवत का दावा किया था? बिल्कुल सही जवाब। नबूवत इतनी मुश्किल है, वो उसको याद रखना फिर उसको बोलना बहुत बड़ी बात है, बहुत काबिल तारीफ है। चलिए टीम ई के लिए अगला सवाल। मिर्जा कादियानी का नई ड्रेस का नाम बताइए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी होने का सबूत हदीस के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीजिए। या अबुल अंबिया आदम आखिरुहुम मुहम्मद। बिल्कुल सही। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनका जलवा तो सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद हैं। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते
گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے، گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کا جلوہ تو سینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہیں۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کا جلوہ تو سینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہیں۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کا جلوہ تو سینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ اللہ 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 اللہ۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفراته، ہے نور سحر چہرے سے تیرے، اور شب کی رونق زلفوں سے۔ اللہ 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 اللہ۔ کنز الکرمی مولا النعم ہاد الامم لشریعته، نعمت کا خزینہ ہے مولا
गंजीनाए रहमत है आका, हादी है तमाम उम्मत के और राहनुमा है शरीयत के। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। साती शजरून तो कल हजरू शकल कमरू बिशाराती ही, उंगली के इशारे से पेड़ चले, हिजाज से पत्थर बोल उठे और चाँद हुआ है दो टुकड़े, अंगुष्ठ के एक इशारे से। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। जिब्रीलु अता लैलत अस्रा वरब दाहु लिहदरातिही, जिब्रील अमी पैगामे खुदा लेकर आई थी वो शबे असरा। अल्लाह ने अर्श पे बुलवाया। इस फंक्शन हॉल मरहबा वालों का तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहूँगी फिर एक बार, और हमारे यहाँ पर मुफ्ती साहब और अभी पूरा सब जो भी यहाँ पर मिलकर ये प्रोग्राम को सक्सेस किए हैं, टीचर्स और हमारे स्पेशल शाकिर सर जो हमेशा हर चीज़ बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं। हम तो सिर्फ प्लान बताते हैं लाइट डाल के, लेकिन ड्रॉ करना पूरा उनका काम रहता है A to Z। तो अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत थैंक यू आप सबका, पूरे जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, टीचर्स, स्टूडेंट्स, आप सबका भी बहुत तहे दिल से थैंक यू। आप लोग जिस तरह अभी सीआई साहब बता रहे थे कि देने वाले बनेंगे या लेने वाले बनेंगे, 8 साल के बाद आपको क्या रहेगा, आप लोग को रेस्पेक्ट विद जॉब। अगर आपको जॉब रहेगी तो रेस्पेक्ट रहेगा, रेस्पेक्ट के साथ आपके पास जॉब और आप देने वाले बन जाएंगे। लास्ट टाइम आए थे सर, एक बहुत अच्छी बात बोले थे कि कोई भी मारे, कोई भी कुछ भी करो, पहले मार दो फिर आके मेरे पास केस रजिस्टर करो। तो मैं बोली मैं भी आप लोगों के साथ आऊँगी, याद है? याद है? अब और एक बात क्या बोल के जा रहे हैं, एजुकेशन के ताल्लुक से। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप सबको ही मालूम है एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। लड़कियां भी आजकल लड़कों के साथ खांधे टू खांधे से लगा के चल रही है, चाहे वो भाई रहने दीजिए, चाहे वो वालिद रहने दीजिए, चाहे वो मामा रहने दीजिए, चाहे वो जो कुछ भी रहने दीजिए, उनके साथ चलने की हम भी ताकत रखते हैं कि नहीं रखते हैं, है ना? तो 10th पढ़ के बैठ जाएंगे खाली, इंटर पढ़ के बैठ जाएंगे खाली, आगे बढ़ेंगे, क्या बनेंगे पढ़ के? माशाल्लाह, कोई IPS है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पढ़िए, आगे बढ़िए, बच्चियों को पढ़ना चाहिए, बच्चे भी पढ़िए, अच्छा सा बच्चे तो पढ़ते ही अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आजकल माहौल इस तरह से हो गया है कि हमारे हाथ में ये जो पहले घर में रहता था शैतान, अब तो हाथों में ही शैतान है, मतलब फोन। अब इस कदर आप लोग नहीं, हम भी इस कदर उसमें बिजी है, तो 2 मिनट को देखते रहते हैं कि क्या आया, कुछ आया, किसी का मैसेज आया, किसी का फोन आया या कुछ आया।
एक मैं पेरेंट्स को यहाँ पर पता नहीं जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप अपने बच्चों को फ़ोन दे भी रहे हैं तो आप उनको इंटरनेट डाल के मत दीजिए। घर पे एक लैपटॉप लीजिए जिसके सामने बच्चे बैठ के अपना प्रोजेक्ट वर्क कर सके। और रात के टाइम पे आप लोग उनका फ़ोन ले लीजिए, रात के टाइम पे उनको फ़ोन मत दीजिए, इससे बच्चों को बहुत बेनिफिट होंगे। मैं खुद अपने बच्चों के साथ भी वही करी तो हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो बच्चों को जो फ़ोन आप लोग रात में दे रहे हैं उससे उनकी तालीम खराब हो जाती है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है और वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। इसके वजह से भी हम लोग बहुत पीछे हो गए। यही वजह है जो हमारे बच्चे नमाज, हमारे कभी टीचर आए थे जिनके आंखों से आंसू आगे बोलते बोलते तो मतलब उनकी जो तड़प मैं फील कर सकती थी कि बच्चे जिस तरह नमाजी, और मैं जहाँ भी महल्ले में जा रही हूँ हर कोई वही बोल रहे हैं कि एक साइकिल के लालच में सही बच्चे पढ़ रहे, अगर उसमें से एक बच्चा भी अगर नमाजी बन गया ना तो मैं समझूंगी मेरे साइकिल के पैसे वसूल हो गए। और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि हम पेरेंट्स ही इतना बता रही हूँ ना, हम पेरेंट्स ही फोन में इतना बिजी हो गए कि हम भी नमाज को नहीं उठ रहे, तो हम नहीं उठ रहे तो हमारे बच्चों को कैसे उठाएंगे आप। एक छोटा सा वाकया है, इसी तरह से कोई पूछे कि अगर आप लग रही घर में और बच्चा सो रहा तो आप उठाएंगे या छोड़ के बाहर निकल जाएंगे? तो बोले आप जल्दी तो बच्चों को तो उठा के लेके जाएंगे, तो फिर जहन्नुम के आपसे कैसे बचाएंगे? जब नमाज के लिए आप नहीं उठा रहे बच्चों को तो फिर आप लगे तो क्यों उठा रहे बच्चों को? तो जहन्नुम में जाएंगे नमाज के पढ़ने के बाद ना। तो इस तरह मेरी एक कोशिश थी, मैं एक हमारे मुफ्ती जावेद साहब के सामने ये बात रखी थी कि साइकिल का ऐसा कुछ मेरा इरादा है, 50, 100, 200, 300, 400, 500 माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे, आई थिंक 800 से ज़्यादा बच्चे, 960 बच्चे रजिस्टर करें अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें से काफ़ी बच्चों ने 700 से ज़्यादा बच्चे 40 दिन की नमाज तो चल रही है। थोड़े लोगों की एक आध दिन इधर उधर किसी वजह से छूट गई है, लेकिन उनको भी इनामात ज़रूर मिलेंगे। तो इस तरह मैं एक ये सोची थी, फिर मैं सोची कि छोटे बच्चे छूट जा रहे, तो 7 साल के नीचे के जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो कुरान ख़त्म कर दिए, लड़कियां हो या लड़के हो, 7 साल के अंदर जो कुरान ख़त्म कर देंगे, कुरान मजीद को ख़त्म करेंगे, उनके लिए इंशाल्लाह उनके लिए भी गिफ्ट दिया जाएगा उसी दिन जिस दिन साइकिल देंगे। एक और चीज़ छूट जा रही थी जो हमारे मदरसा छूट जा रहा था, तो मदरसा से भी मुफ्ती साहब वालों को काफ़ी लोगों को कॉल आया कि हमारे बच्चे भी छूट जा रहे करके। तो हम लोग फिर बैठे और डिस्कशन करें कि हम जो भी मदरसा है बोधन में, वहाँ से एक एक बच्चे को जो अच्छा हाफिज बन गया बच्चा, जो अच्छे पढ़ने में काबिल है, अच्छे बच्चे हैं, वैसे हर एक मदरसे से एक बच्चे को लेंगे। इस तरह साल में 10 बच्चों को हम जमा करेंगे, उनके साथ एक टीचर को भिजाएंगे ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। 10 बच्चे साथ में जाएंगे टीचर के और 10 वापस आएंगे उम्रा करके इंशाल्लाह पूरी तकलीफ के साथ। तो ये 3 चीज़ हम लोगों ने प्लान करी थी, जो 7 साल के अंदर, फिर 7 to 18, फिर 18 अबाउ 7 to 15 और फिर 15 के अबाउ उम्रा को जाएंगे बच्चे बोल के। तो इस तरह दीन की छोटी छोटी चीज़ों को जहन में रखते हुए आगे बढ़ाएंगे, आगे करेंगे, कुछ करेंगे बोल के इरादा था और अल्लाह कामयाब करा इस इरादे को। और मैं फिर आप सबको बोलती हूँ, मतलब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ टिम्बरिस में मिल रही है स्कूल के बच्चे और बच्चियों को, तो आप लोग प्लीज़ अपने घर जाके फिर से बोलिए एडमिशन्स के लिए आगे बढ़िए, क्योंकि आगे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो घर में 2-2 लोग कमा सकेंगे, और घर में 2-2 लोग कमा सकेंगे तो घर के हालात भी अच्छे रहेंगे और आपके बच्चों के बच्चे भी अच्छे रहेंगे। और इस तरह यहाँ पर जमा होके हमारी दीन के बारे में इतनी सारी नॉलेज गैदर करना, जैसा कि आपके बाद हमेशा 2 साल से हमें सिर्फ आप लोग को जो पेपर मिलते थे वो सिर्फ ये भी इस्लाम के ताल्लुक से ही है, लेकिन ये इन डेप्थ है जो आप लोग पढ़े। इसमें से कई चीज़ें तो मेरे को भी नहीं मालूम थे, जो हम मतलब जो बुक्स और जो क्वेश्चन आंसर्स सुन के जो सीख रहे हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ नॉलेज की कोई उम्र नहीं है, चाहे आप कितने भी बूढ़े हो जाए, कितने भी एज के हो जाए, आपको सीखना चाहिए, सीखते ही रहना चाहिए। और जज़ाकल्लाहु खैर, आप सब यहाँ पर आए, फिर से मैं दिल से आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी। मेरे सारे दोस्तान जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरे सारे भाई बहन जो भी यहाँ पर है, और मेरे बच्चे स्कूल के जो भी मेरे बेटियाँ बेटे जो भी यहाँ पर बैठे हुए, उन सबको भी और शाकिर साहब थैंक यू सो मच। आप हमेशा इस तरह से
अपने भाई से भी ज्यादा है आपने को, जज़ाकल्लाह खैर। यही बात भी वही बात बोल रहा, क्या करना है, एक मारने के बाद बात करना, कभी भी हिम्मत से रहना। ओके, फिर ये बात क्या बोल रहा, वो तो याद है, कहीं याद ना रहे तो बोल के वही बात बोल रहा, बोल के सोचा मगर आपको याद है ना। अभी दूसरा बात बोल रहा, क्या बोलना, जो और एक बात बोल दो, बोला नहीं बोलना, जो आप जो हर स्टूडेंट है ना सब लोग, जो आप जो बड़ा होने के बाद देने वाला तरफ से रहते नहीं तो लेने वाला तरफ से रहते, देने वाला तरफ से रहते, जो देने वाला तरफ से रहना बोले तो क्या करना, yes, we should be settled in the life in a proper way. जो आपका काम क्या है अभी, अच्छा पढ़ना, अच्छा सीखना, लेने के बाद जॉब रहने तक हार्ड वर्क करना नहीं करना, हार्ड वर्क करके कोई भी जॉब होना, हमारा लाइफ में सेटल होना, कोई भी बिजनेस लाइन दो, नहीं तो कोई भी कमाने का काम, सैलरी आने का काम कुछ तो करना, करने के बाद क्या करना बोल के सोचना, करके अभी भी अच्छा बिजनेसमैन होना, नहीं तो एक जॉब लेना, अच्छा जॉब बोले तो IAS IPS जैसा हमारा ताकते रहना, वो रहते तो कैसे वो भी ग्रुप 2 जैसे MRO तक तो 100% हो जाते हैं। अभी अनस्टेबल होना, नहीं तो MRO होना बोले तो सोचते तो क्या होते, कभी भी होते, कभी भी नहीं होते। जो आप क्या सोचना, IAS IPS सोचना, दोनों सोचते तो क्या होने के बाद आप थोड़ा IPS नहीं तो IAS होने के बाद कैसे रहते, आप देने वाला तरफ से रहते, ठीक है। वो IAS IPS होना बोल के सोचते, होना बोले तो क्या करना, हार्ड वर्क करना, अच्छा पढ़ना, हार्ड वर्क करना ना। अब तो 8 से 10 तक है ना, ओके, अभी तो 10th क्लास है, 10th क्लास होने के बाद इंटरमीडिएट रहते, इंटरमीडिएट होने के बाद इंजीनियरिंग नहीं तो डिग्री रहते, कम से कम 8 साल रहते। एवरेज लाइफ स्पैन क्या है अभी, 80 इयर्स है अप्रोक्सीमेटली। कभी कभी हमारा पुलिस तरफ से वाला 60-65 को खत्म हो रहा, मगर एवरेज लाइफ स्पैन तो 80 है। अब जो 8 साल नेक्स्ट 8 इयर्स आप हार्ड वर्क करिए तो नेक्स्ट इयर्स रहता है 80 इयर्स तक जिंदगी कैसे रहते, सुकून से रहते, कैसे रहते, सुकून से रहते। कहीं को 8 इयर्स अच्छा पढ़ के अच्छा जॉब होने तक अच्छा हार्ड वर्क कर लिए तो आपको बाद में आप देने वाला तरफ से रहते ना रहते, करते हार्ड वर्क, करते नहीं करते, याद रखिए वर्ड्स, ओके। पर्दा नशीन बहनें, प्रोग्राम में शिरकत करने वाले तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये जो प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है सीरत के उन्वान से, नाम तो इसका इनामी है, लेकिन ये इनाम तरगीबी इनाम है ताकि हमारे जो बच्चे हैं और जो बच्चियां हैं उनके अंदर बुनियादी और ज़रूरी मालूमात हो सके। वजह उसकी ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख़त्म ज़माने में फितनों का वजूद बहुत ज़्यादा होगा और अपने ईमान को बचा कर लेकर जाना बहुत मुश्किल होगा। इतना कि कुरान करीम में कहा कि इन्नल लदीना आमनू सुम्मा कफरू सुम्मा आमनू सुम्मा कफरू, यानी कि बाज़ ऐसे होंगे जो सुबह को मुसलमान होंगे तो शाम को वो काफिर हो जाएंगे, कोई शाम को काफिर रहेगा तो फिर वो सुबह को मुसलमान हो जाएगा। तो कोई किसी का ईमान एक दिन उसके ईमान के महफूज रहने का कोई यकीनी सूरत हाल नहीं रहेगी, ऐसे फितने पूरे फैल जाएंगे और उन फितनों में अपने ईमान को बचा कर लेकर जाना ये बहुत बड़ी कमाल की बात होगी। और आज का दौर क्योंकि फितनों से घिरा हुआ है, मुख्तलिफ किस्म के फितने हमारे अंदर आते जा रहे हैं और तलबा और तालिबात बिलखुसूस नौजवान लड़के और
लड़कियां उसका शिकार हो रही है, उसी के पेश नज़र, उसी की फिक्र करते हुए मुफ्ती शेख जाबिर इशाकी साहब और MLA साहब के अहलिया ने ये जो कोशिश की है कि तलबा और तालिबात को और नौजवानों को इस्लामी बुनियादी मालूमात को किस तरह फराहम किया जाए। अगर वाज़ व बयान रखेंगे, तकरीर रखेंगे, इज्तिमा रखेंगे, जलसा रखेंगे तो एक उन्वान पर एक बात सुनकर चले जाएंगे। ये सवालात के जरिए से और उसके जवाबात देने के लिए बच्चे और बच्चियां बहुत ज़्यादा अपनी ज़हनी सलाहियत को उसके अंदर लगाएंगे और जहन में वो महफूज रहेंगे और ये बचपन की उम्र का याद किया हुआ पत्थर की लकीर की तरह महफूज रहता है, वो मौत तक उनके जहन में रहेगा। और इंशाअल्लाह आज की इस कोशिश से कोई बदअकीदगी के साथ इस दुनिया से रुखसत नहीं होगा इंशाअल्लाह सब। क्योंकि जो लोग काना दज्जाल के बारे में या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में या इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में, यहाँ तक के हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी, आपकी ताजे तख्ते खत्म नबूवत के बारे में भी गलत बातें फैलाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप एक बात जानकर बड़े हैरान होंगे, ये शकील बिन हनीफ का जो फितना चल रहा है उसमें कोई मॉडर्न किस्म की लड़की या मॉडर्न किस्म का नौजवान कॉलेज का पढ़ने वाला नहीं बल्कि दीनदार लोग जिनकी 5 नमाजों के अलावा तहज्जुद नहीं छूटती, इशराक नहीं छूटती, तिलावत नहीं छूटती, तकवे वाले लोग उस फितने का शिकार हो रहे हैं। और औरंगाबाद में, बिहार में पैदा होने वाला शकील बिन हनीफ औरंगाबाद में छुपकर बैठा हुआ है, उसको इमाम महदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम न सिर्फ मान रहे हैं बल्कि उसकी तबलीग कर रहे हैं। और उसके जवाब में उनका जवाब ये है कि इसकी तबलीग में तो वो सारी मुश्किलात आएंगी जो जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, मक्की दौर में जो हुजूर हुआ, इतनी शिद्दत के साथ और बदअकीदगी फैली। एक उसके मुबल्लिग को निजामाबाद में पकड़ा गया तो उससे गुफ्तगू हुई तो वो ये मानने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं कि ईसा अलैहिस्सलाम नहीं आए। वो ये कह रहा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आ गए, आप भी मान लीजिए। हालांकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अहादीस की रोशनी में वो दमिश्क की जामे मस्जिद के मीनार पर जन्नत से गुस्ल करके आएंगे और फरिश्तों के कांधों पे हाथ रखते हुए आएंगे, तो वो उसके पर एक सवाल पैदा कर रहा है कि ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है। कुरान करीम में है शब कद्र के ताल्लुक से तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र, यानी कि उस दिन, उस रात में फरिश्ते जमीन पर आते हैं और जो लोग शब कद्र में, लैलतुल कद्र में इबादत करते हैं उनसे मुसाफा करके जाते हैं। तो क्या उसका भी इनकार करेंगे कि कैसे मुमकिन है फरिश्ते आएंगे? हमने जो ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल में जो कुछ पढ़ा है और उसमें पढ़कर ईमान लाए, उस पर कायम रहना है। फरिश्तों के ताल्लुक से, अंबिया अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से अगर उसमें जरा सी भी, थोड़ी सी भी अगर ये नाजुक मसला है ईमान का और खासकर तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत का, इसमें थोड़ी सी भी गफलत हुई तो हमारा ईमान रुखसत हो जाएगा। उसी को बचाने के लिए ये सबसे अहम काम है कि अगर आदमी दुनिया में जितना चाहे दीन का काम कर ले या दुनिया का कर ले, आखिरी वक्त में अगर अपना ईमान महफूज करके नहीं गया तो वो नामुराद, नाकाम हो। इसीलिए शैतान जब रूह निकलती है, इंसान दुनिया से रुखसत होने का वक्त होता है, उस वक्त भी वो गुमराह करने की कोशिश करता है। इसलिए दुआ की जाती है कि खातिमा हम सब का ईमान पर हो, ताकि जिस वक्त शैतान सकरात के वक्त आकर गुमराह करता है, उसकी गुमराही से, उसके वसवसों से सबकी हिफाजत। तो जब तक शैतान पीछा करता है मौत तक, तब ये शैतान के एजेंट हैं जो आकर मुख्तलिफ किस्म के बातें फैला रहे हैं। और उसी से बचने और महफूज रहने, हमारे बच्चे और बच्चियां बदअकीदगी से बचने के लिए और अपने अंदर पुख्ता ईमान के साथ दुनिया से रुखसत होने की कोशिश की गई है। जनाब शकील आमिर साहब के अहलिया मोहतरमा को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस कोशिशों और काविशों को कामयाब करे। अल्लाह तबारक व तआला मुझे, आपको, सबको दुनिया से रुखसत होते हुए अपने साथ ईमान के साथ दुनिया से रुखसत होने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हमारा ये जो ट्रस्ट है आयशा वेलफेयर ट्रस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह हर मैदान में अपने खिदमत अंजाम दे रहा है, चाहे वो समाजी हो,
چاہے وہ مذہبی اعتبار سے ہو یا تعلیمی اعتبار سے ہو. بالخصوص ہم جو دینی اعتبار سے رہبری اور رہنمائی کر رہے ہیں، اس ٹرسٹ کے تحت جیسے مثلا 40 روزہ پروگرام جو چل رہا ہے، الحمدللہ اللہ جانتے ہیں، اور بس ہم یہ کام جو میڈم کے ذریعے ہو رہا ہے، کسی بھی اس میں نسبت نہیں ہے کہ فلاں مسلک، فلاں مشرب یا فلاں محلہ، فلاں مسجد، نہیں. ہم غیر جانبدار انداز میں کام کر رہے ہیں. اگر کوئی بول رہا ہے تو ہم بولنے والے کو کبھی دیکھتے نہیں، چاہے ہمیں کتنا بھی بولے، لیکن کرنا ہمیں وہی ہے جو قوم کے لیے بہتر ہو، جو امت کے لیے بہتر ہو، اور جو ہمارے معاشرے کے لیے بہتر ہو. بالخصوص جو ہمارا 3 سال سے یہ جو آج تیسرا ہمارا سیرت کوئز مقابلہ ہے، اس میں بھی یہ ہم نہ اس میں کسی اسکول کی نسبت رہتی، نہ کسی شخصیت کی نسبت رہتی، کیونکہ اس طرح کی باتیں آ رہی ہے کہ ایسا کیسا ہوتا، ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے. اگر جو بولنے والے ہوتے، اگر وہ ہماری جگہ ہوتے تو ہماری ہی طرح فیصلے لیتے، کیونکہ وہ بھی قوم کے خیر خواہ ہیں، لیکن ان کی اپنی سمجھ انفرادی الگ بن رہی ہے. ہم ان سے معذرت خواہ ہیں، لیکن ہم جو قوم کے لیے، معاشرے کے لیے جو بہتر ہے، انشاءاللہ وہی مشورے دیں گے اور وہی کام آگے بڑھائیں گے. اور ہمارے جتنے یہاں پر اسکول حصہ لیے ہیں، ماشاءاللہ بالخصوص ہمارے ویرنا گٹے سے آئے ہوئے بہت قابل تعریف ہے. 8:30 کو پہنچ گئے میڈم، 8:30 کو پہنچ گئے. اور اس کے علاوہ جو کبھی دوسرے یعنی پہلے کے پروگراموں میں نہیں آئے، وہ بھی قابل مبارکباد ہے. یہ نیلے کے بارے میں آپ کو میں کہنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہ نیلے والے حالانکہ اردو میڈیم اسکول ہے، یہاں کے جونیئر یعنی اسکول، کالج کے اسکول کے وہاں کے طلبہ آ سکتے ہیں، اور اسی طرح دوسرے ٹیورسٹ کے آ سکتے ہیں، تو وہاں کے اسکول کے کیوں نہیں آ سکتے؟ حالانکہ آپ نے براہ راست ایم ایل صاحب سے بات کر کے کہی تھی بات، وہاں کے ذمہ داروں کے ہمیں فون آ رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ اس بارے میں آپ بالمشافہ ان سے بات کر کے ان کے بارے میں کوئی ایک فیصلہ لیجیے، تاکہ ہمارا کام وسیع ہو اور آگے بڑھے. اسی طرح جتنے ہمارے اساتذہ محنت کیے ہیں وہ قابل تعریف ہیں، جو اپنی محنتوں کے ساتھ ساتھ صبح سویرے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے طلبہ اور طالبات کے ساتھ آئے ہیں، قابل مبارکباد ہیں. اور جتنے حصہ لیے ہیں وہ سب قابل مبارکباد ہیں. بہرحال انہی چند کلمات کے ساتھ میں تمام حاضرین اور طلبہ طالبات اور تمام ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بالخصوص عائشہ ویلفیئر ٹرسٹ، اللہ جزائے خیر دے اس ٹرسٹ کو اور ان کے کام کرنے والوں کو، بالخصوص محترمہ عائشہ فاطمہ شکیل عامر صاحب، اللہ جزائے خیر دے. جو بھی دین کی نسبت سے میں ان کو بات رکھتا ہوں، ایسا نہیں میری طرف سے بلکہ پہل ان کی طرف سے ہی ہوتی ہے، لیکن کبھی لفظ نہ نہیں ہوتا. البتہ اتنا جملہ ضرور آتا ہے بیچ میں پہلے اپنے آپ سے مشورہ کر لیتی، اس کے بعد وہ پازیٹیو میں ہی مسئلہ آتا. جیسے مدرسوں کے عمرے کے مسئلے آئے تو میں فوراً بولا تو الحمدللہ آپ نے اس کو قبول کر لیے، دیر صحیح لیکن مشورے کے بعد آپ نے قبول کیے ہیں. اسی طرح اور بھی بہت سے کام، اور ان کے پاس خاص بات یہ ہے، آپ دیکھتے ہیں لیڈروں کے پاس ایک جملہ ہوتا، میں کیا، میں کر رہا ہوں، میرے سے ہو رہا، لیکن آپ نے کبھی بھی ان کے جملے لفظ میں سے نہیں شروع کیے. یہ بہت اونچی صفت ہے، یہ بہت اونچا خیال ہے، اور ایسے ہی لوگ ترقی کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، اور اللہ ایسے ہی لوگوں سے قوم کی خدمت لیتے ہیں. بہرحال میں ہمارے اس وقت میں بالخصوص ہمارے شاکر صاحب جو ہمارے سر رہے ہیں، یعنی ہمارے اس کام کے لیے جن کے اوپر سہرا جاتا ہے، وہ بلا مبالغہ اس بات کے مستحق ہے اور اس تعریف کے بھی مستحق ہے. اللہ دونوں جہاں میں ان کو اور ہم سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے. مولانا سید عبد القدیر صاحب ہمارے
सरपरस्त है हमारी मस्जिद के खत्म नबूवत के जिम्मेदार हाफिज सैयद कलीमुल्लाह, ये भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इस काम में साथ साथ रहे। हमारे इरफान खान, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। हमें दुनिया से हमने इस्लाम को फितने से बचा रखा है, हमें दुनिया से हमने इस्लाम को फितने से बचा रखा है। मुझको पहचानते ये लोग आके रसूलुल्लाह मेरी निस्बत से। ये शेर मैम के लिए इसलिए है कि मैम पिछले 3 साल से मुसलसिल सीरत को रखाते हुए ये साबित कर रही हैं कि हम इस्लाम और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूलों पे, रास्तों पे अमल कर रहे हैं कि हमें दुनिया से हमने इस्लाम को फितने से बचा रखा है। मुझको पहचानते लोग आके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी मोहब्बत से मेरे नाम में क्या रखा है। बस ये शान, ये शोहरत आपको जो मिल रही है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम से सच्ची मोहब्बत के दुआ है। अल्लाह ताला आपकी इन खिदमत को कबूल फरमाए और आपको इसका अजर अज़ीम अता करे। सबसे पहले हमारे बिलोव आयशा मैडम को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। बहुत ही अच्छे अंदाज में ये प्रोग्राम का अमल मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट आई वांटेड टू डेडिकेट दिस कोटेशन फॉर आवर बिलोव आयशा मैडम। आपकी आमद से हर शय चमकदार लगी है, आपकी आमद से हर शय चमकदार लगी है। ये बज़्म, ये महफिल गुले गुलजार लगे हैं। मेरा दिल क्यों ना हो कायल आपकी ज़हर लिसानी का, मेरा दिल क्यों ना हो कायल आपकी ज़हर लिसानी का। सुना है हर तरफ चर्चा है आपकी जादू महर का, सुना है हर तरफ चर्चा है आपकी जादूगरानी का। परों को मिलेगी मंजिल, परों को मिलेगी मंजिल, उनके बिखरे पर बोलते हैं। परों को मिलेगी मंजिल, उनके बिखरे पर बोलते हैं। वो लोग खामोश रहते हैं अक्सर जमाने में जिनके मुंह पर बोलते हैं। जो तलबा विनर हुए, कामयाब हुए, वो भी मुबारकबादी का मुस्तहिक है। और जो तलबा किसी वजह से विनर नहीं बन सके वो भी मुबारकबादी का मुस्तहिक है, इसलिए कि उन्होंने हिम्मत करके मुकाबले में हिस्सा ले करके यहाँ पहुँचे और बेहतरीन मुजाहरा किया। इसलिए कि जो हिस्सा लेते हैं वही हारते हैं और वही जीतते हैं। इसलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। यानी जो हिस्सा नहीं लिए वो तो यहाँ पर पहुँचने की भी सआदत हासिल नहीं कर सके। इसलिए आप हजरात बहुत ही मुबारकबादी का मुस्तहिक है। और इसी तरीके से मोहतरमा आयशा आमिर साहिबा भी बहुत ज़्यादा मुबारकबादी के मुस्तहिक है कि उन्होंने इतना बड़ा खर्च लगा करके इस मुकाबले को मुनक़िद किया। हम उनके हक़ में नेक तमन्नाओं का और नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। और इसी तरीके से शाकिर साहब की जो टीम है वो टीम भी इंतहाई शफ़ाफ़ और शफ़ाफ़ तरीके पर इस मुकाबले को मुनाकिद कर रही है, वो भी मुबारकबादी के मुस्तहिक है। मौका देने के लिए आप हज़रात का शुक्रिया। इलाही रौनक इस्लाम के सामान पैदा कर, इलाही रौनक इस्लाम के सामान पैदा कर, दिलों में मोमिनों के उल्फत कुरान पैदा कर। इल्म एक ऐसी दौलत है जो लुटती नहीं, इल्म एक ऐसी दौलत है जो लुटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं। और मैं इस बात से भी खुश हूँ कि जो 40 रोज जो साइकिल का इनाम चल रहा, माशाल्लाह पूरे तमाम बच्चे मस्जिद को जा रहे हैं। और हम लोग तो सभी कुछ काम की वजह से नमाज छोड़ती, और मगर हमको नमाज नहीं छोड़ना चाहिए। मगर मैं खुसूसन चाहता हूँ मेरे जो लड़का है नमाज के लिए रोज़ाना साइकिल की लालच में हो, कुछ भी हो, अल्लाह तबारक तआला तमाम बच्चों को पंजगाही नमाजी बना दे। और साइकिल की लालच में हो मुसलसल नमाज के लिए बच्चे जा रहे, और बच्चा जाने की वजह से हमारे घर वाले भी नमाज पढ़ रही। फिर उसके अलावा फिर हमारे बच्ची जो बड़ी बच्ची है उनका भैया नमाज
मैं सबसे पहले तो हमारे आयशा भाभी, जनाब मोहतरमा मिसेस MLA आयशा मैडम, जो कि आयशा वेलफेयर सोसाइटी के थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने बच्चों को इतना अच्छा दीन का माहौल बनाया और इतना अच्छा दीन की तरबियत हासिल करने का मौका दिया। तो ये मौका आप लोगों को ना सिर्फ ऐसे ही हासिल नहीं होता, जब अल्लाह ताला आप लोगों को ना अपनी मोहब्बत की निगाहों से देखते, जब मोहब्बत की निगाहों से देखते, तो जब मतलब अल्लाह के दीन में हम पहुँचते, तो जब अल्लाह ताला आप अपने आयशा भाभी को जब मोहब्बत की निगाहों से भी देख रहे और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को चुनता जो कि ऐसे लोगों को दीन के काम के लिए चुनता, यहाँ तक कि आप इतने बड़े MLA के मिसेज रह के आप जो है तो सुबह से लेके आपके पास सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का भी वक्त आपको फ्री नहीं मिलता। हम लोगों को पता है क्योंकि हम उनके हेल्पिंग हैंड ग्रुप के मेंबर भी है और ये भाभी के काउंसलर भी है, तो हमको अच्छे से पता है कि वो क्या क्या करते बोल के। तो यहाँ तक कि जब वो रात में जाकर सोते तो मतलब उनके पैरों में इतना दर्द और इतनी तकलीफ होती, हम लोग भी थोड़ा सा भी दर्द हुआ तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इतने बड़े MLA के मिसेज रह के फिर भी इतनी सारी कोशिशें करते कि क्यों? क्योंकि अपने दीन को आगे बढ़ाने के लिए, हम मुसलमान कौम को आगे बढ़ाने के लिए, किसके लिए करते कि हम मुसलमान कौम को आगे बढ़ाने के लिए। तो अल्लाह ताला मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इनको जो भी मेहनत कर रहे, आयशा भाभी जो भी मेहनत कर रहे, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए और अल्लाह ताला उनकी हर एक में कामयाबी अता करे, हर एक चीज में कामयाबी अता फरमाए। कि आजकल के ज़माने में ये कादियानी फितना, शकील बिन हरीफ फितना, ये जो बहुत काफ़ी उरूज पर है, तो जो बच्चे सुबह से यहाँ पर बैठे हैं, प्रोग्राम्स चल रहा है, पार्टिसिपेट हुए हैं, या बहुत सारी तैयारी के बाद आप लोग यहाँ पर आए और पार्टिसिपेट करें, तो एक छोटा सा शेर है इन बच्चों के लिए जो आज कामयाब नहीं हुए। हम देखना ये है व्हाट वी हैड एंड व्हाट वी हैव। पहले आपके पास क्या था, अब क्या है। इससे पहले आपको उस बारे में नहीं मालूम था, क्योंकि आप लोग 8 या 10 क्लास तक के बच्चे हैं, तो आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं थी। लेकिन जैसे आपके पास ये प्रोग्राम का शेड्यूल आया, आपके पास किताबें दी गई, उसके बाद आप लोग तैयारी करें, तब आपको मालूम ये हुआ कि वो क्या चीज़ है। अब आप जाकर है ना आपके बहनों को और ये फितने से दूर रह सकते आप लोग। तो मंजिलें तो मिल ही जाती हैं भटकते ही सही, मंजिलें तो मिल ही जाती हैं भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। आपका यहाँ पर आना दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपका पार्टिसिपेंट बहुत अहमियत रखना है यहाँ पर। जो बच्चे कामयाब हुए उनके लिए मुबारकबाद है मेरी, और जो बच्चे कामयाब नहीं हुए वो ये ना सोचे कि हम नाकाम हुए, बस वो ये सोचे कि हमने पार्टिसिपेट किया और बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ हासिल किया। और साथ ही साथ इंतजामिया का शुक्रगुजार हूँ, खासकर मिसेस शकील अहमद साहिबा का भी शुक्रगुजार हूँ कि है ना हर साल ये 3रा साल है जो मैं यहाँ पर हमारे स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर पार्टिसिपेट हुए। चूँकि बच्चे थोड़ा इंग्लिश मीडियम से बिलोंग्स करते, थोड़ा सा हमारे स्कूल के बच्चे जो है उर्दू में वीक रहते, तो इंशाल्लाह आइंदा साल भी अगर प्रोग्राम होंगे तो हमारे बच्चे इंशाल्लाह अच्छा तैयारी करके अच्छा पार्टिसिपेट करेंगे।